Hello from AJ Educational Academy. So this is going to be one of the important video, because in this video we are going to solve questions from polynomials. From polynomials, apart from this, we have completed every other problem, right? Long questions we have completed, 2 marks and 4 marks also. But here in this video we are going to do graphs. For sure, you will get one question from the graphs of polynomials, not only in SA1 but also in SA2. So for that purpose, you have to be very perfect with the graphs of the polynomials, right? So let us start. First question in the exercise number 3.2, question number 3. 3.2, question number 3. Let us solve the first question. Draw the graphs of the given polynomial and find the zeros. Justify the answer. Right. P of x. First question given polynomial. You have to write given P of x. What is it? X square minus x minus 12. X square minus x minus 12 is the given polynomial. Right. Chalo. We have to find the zeros of the polynomial, right? First of all, we will consider some value of x. We'll put the value of x. Suppose we are substituting 1. Whatsoever we are getting, that is y. So we have to plot these points on the graph. On the graph, this is the Cartesian plane, you know. Cartesian plane, x-axis will have a x-axis and y-axis. We have x-axis and y-axis. Suppose we have to get points here before drawing the graph. If I have to draw the graph, I should know the points. Like for example, this parabola. This graph is called as parabola. You will get a parabola. So in order to draw the graph, we should know the points. And we have to substitute certain values of x and get the value of y. So for all the questions in the entire textbook, remember the range from -4 to +4. -4 to +4. So in the place of x, start by -4. In the place of x, you have to substitute -4. Solve it, you will get a value that will be y. -4 comma something, whatsoever it is, y. -3, you will get a value of y. -3 comma something, second point. -2 comma something, -1. -4, -3, -2, -1, 0. +1, +2, +3, +4. We'll get all the values, and after we have the values, we have to plot those values on the graph and decide a scale, how to do, what to do. I'll let you know. First of all, let us substitute the values from -4 to +4. You'll understand why are we taking -4 and at what position we have to get, and there are certain tricks also. I'll let you know in the later part of the video. Chalo. Let us start with -4. Put x is equal to -4. X is equal to -4. So P of -4 is equal to, in the place of x we have to substitute -4. -4 whole square. Minus is already there. In the place of x we are writing -4. Minus of -4. Do not get confused over here. Minus of -4 minus 12. -4 whole square is nothing but 16, because minus into minus is plus. -4 into -4, minus into minus plus. 4 4s are 16. Minus into minus plus. 4 1, it is directly 4. -12. Right. After reaching at this point, you will get similar models, like in after we substitute -3, -2. At this point, you have to remember all the minus terms one side together and all the plus terms together. Here you have +16 and +4. Consider this as one group and minus terms as one group. 16 plus 4 how much? 20. 20 minus 12. 20 minus 12 is nothing but 8. So this is one point. What's the point? -4 comma 8. This is the first point. X minus 4 लगाए, y की value 8 आई. First point. Next. Put x is equal to -3. X is equal to -3. P of -3 is equal to -3 whole square minus of -3 minus 12. -3 whole square is nothing but 9. Minus into minus, plus 3 minus 12. So now again 2 plus values. 9 is plus, 3 is plus. 9 plus 3, 12. 12 minus 12. 12 minus 12 is nothing but 0. -3 comma 0. Clear? Next. Put x is equal to -2. P of -2 is equal to -2 whole square minus of -2 minus 12. Barabar? In the place of x we have substituted -2. -4, -3, -2. Chalo. Increase the speed a bit. -2 whole square is nothing but 4 plus 2 minus 12. 4 plus 2 is 6. 6 minus 12. 6 minus 12 how much?
minus 6. 6 minus 12 is minus 6. What's the point here? Minus 2 comma minus 6. Next, x is equal to minus 1. P of minus 1 is equal to minus 1 whole square minus of minus 1 minus 12. Minus 1 whole square is nothing but 1 plus 1 minus 12. 1 plus 1, 2 minus 12 minus 10. Minus 10. Do not get confused here. If you forget to write minus, then the point will be plotted at the wrong position. So this is minus 1 comma minus 10. Minus 1 comma minus 10. Next, x is equal to 0. X is equal to 0. P of 0 is equal to 0 square minus 0 minus 12. 0 square is 0 minus 0 minus 12, which is nothing but minus 12. 0 minus 12 is minus 12. What's the point here? 0 comma minus 12. Next, after that, x is equal to 1. And also in some cases, in your book or at your school, you must have seen the similar question in the form of box. In most of the cases, they will make you to solve this question in the box. Say again, I have already told this before. My way of explaining, I consider about the students who are below average. Looking at that box, you might feel like instead of writing this entire thing, writing in a little box is much more smaller. So it is not dependent on how long or short the sum is. It depends on how clear your understanding. Clear? If it is taking 2 pages, not a problem, though at least you are understanding, right? In the box, if you do in this half of the board only, it will fill. However, understanding is the main issue here. Again, we have to do rough work and solve there only. So why doing rough work and all clumsy? Here only we can put the values one after other and get the respective y values. Alright, x is equal to 1. P of 1. P of 1 is equal to 1 square minus 1 minus 12. 1 square is nothing but 1 minus 1 minus 12. Now, see here, from these questions, after reaching at this point, 2 plus values, 2 plus values, 2 plus values, 2 plus values. Till here we got 2 plus values, that's why 2 plus values we added and later dealt with minus 1. Here we have 2 minuses, 2 minus and 1 plus. So here you can write 1 minus 13 because minus 1 minus 12 is minus 13. Minus 1 minus 13 is nothing but minus 12 or plus 1 minus 1 cancelled minus 12. Different approaches are there, but my suggestion is to go for adding all the terms, all the minuses together, all the pluses together, because in this case plus and minus is getting cancelled. It is not necessary that in all the cases that will happen. So if you have that base rule remembered, you can do for all the any number. X is equal to 1 is completed. After 1, x is equal to 2, which is nothing but P of 2. P of 2 is equal to 2 square minus 2 minus 12. 2 square is nothing but 4 minus 2 minus 12. Right, 2 minuses together. Minus 2 minus 12 is minus 14. This is 4 minus 14. 4 minus 14 minus 10. Is it visible? Yes. 4 minus 14 is minus 10. Array, we did not write the point here, no? It is 1 comma minus 12. This is 2 comma minus 10. Right. What is next? 3. X is equal to 3. P of 3 is equal to 3 square minus 3 minus 12. 3 square is nothing but 9 minus 3 minus 12. Both the minuses together. Minus 3 minus 12 minus 15. 9 minus 15. 9 minus 15 is nothing but minus 6. So the point here is 3 comma minus 6. Next, x is equal to 4. P of 4 is equal to 4 square minus 4 minus 12. 4 square is nothing but 16 minus 4 minus 12. Minus 4 minus 12 minus 16. So this is 16 minus 16, which is nothing but 0. The point here is 4 comma 0. So now we have points 1, first, second, third, fourth point, fifth, sixth, seventh, 8, 9. 9 points are there. We have to plot this point on the graph. Before plotting the points on graph, let us recall basics regarding the graph. Suppose x, I have this point 2 comma 3. Where will I place this point? This first value is nothing but x. This is substituted on the x axis. This will look on the y axis. Most of you guys must be knowing this. However, I already told you. Right, x is equal to 2 units. 2 here and 3 to the top. यहाँ से 2, यहाँ से 3. In the graph paper, you will have the boxes. यहाँ पर अंदाजे से मैं बना दे रहा हूँ 2, 3. Here somewhere over here the point will be. This is 2, 3.
2,3 राइट, -4, -5 है फॉर एग्जाम्पल, -4, -5, एक्स एक्सिस पे -4 यहां पर कहीं आता, -5 वाई एक्सिस का, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स भी माइनस है -4, वाई भी माइनस, यहां पर माइनस, ये दोनों को ज्वाइन करते इधर पॉइंट बनता है, तो ऐसा ठीक है, यहां पर तक ठीक है। पॉइंट में जब एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू है, दो भी नॉन जीरो नंबर्स है, मतलब जीरो के अलावा दूसरे नंबर्स है, तो उसको प्लॉट करना आसान है। जब जीरो आता वहां कंफ्यूज आते, सपोज देखो 2,0 आ रहा, 2,0 फॉर एग्जांपल पॉइंट है, कहां सब्स्टिट्यूट करते बोले, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट है वो 2,0, कैसा समझ में आ रहा। यहां पर देखो एक ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक नहीं मतलब जनरल रूल है वो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, इफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, इफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 द पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट जाता वाई एक्सिस पे, जाता किधर, वाई की वैल्यू कितनी है, फॉर एग्जांपल एक्स कोऑर्डिनेट 0, 0,2 है, 0,2, एक्स कोऑर्डिनेट 0, कौन से एक्सिस पे जाना चाहिए ये पॉइंट, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे किधर जाना, 2 के पास, +2 यहां पर आता पॉइंट, एक्सिस पे आता। एक्स या वाई में दोनों में कहीं भी एक भी 0 आया तो पॉइंट एक्सिस पे रहता, याद रखो, एक्स भी 0 आन दो, वाई भी 0 आन दो, एक्सिस पे चल जाता। नाउ हियर वी हैव एक्स कोऑर्डिनेट 0, इफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 पॉइंट विल गो ऑन वाई एक्सिस, एट व्हाट पोजीशन दिस वैल्यू विल टेल, फॉर एग्जांपल वन मोर वैल्यू विल टेक 0, -5, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, कौन से एक्सिस पे जाना, वाई एक्सिस पे जाना, वाई एक्सिस पे किधर जाना, -5 के पास, हियर दिस इज 0, -5, क्लियर। अनदर पॉइंट 3,0, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इफ वाई कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन व्हाट लाइन, ऑन व्हाट एक्सिस द पॉइंट गोस, एक्स एक्सिस। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है द पॉइंट गोज ऑन एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट गोज, इफ वाई कोऑर्डिनेट इज 0 इट गोज ऑन एक्स एक्सिस, करेक्ट है, इफ एक्स कोऑर्डिनेट 0 पॉइंट गोज ऑन वाई एक्सिस। चलो ये तो अपन देख लिया, यहां पर ये कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, यहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 बोलते कौन सा एक्सिस पे जाना, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे किधर जाना, ये नंबर बोलता किधर है, +3, +3 इधर, ठीक है, समझ आ गया। चलो जल्दी जल्दी बोलो, 2 दिन मैं पूछता हूं, 2,0, 2,0 बोलो अक्सर किधर है, वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पे आना, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पे 2 के पास। अच्छा सोच के बोलो, नेक्स्ट -3,0, वीर बोलो, -3,0 कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो कौन से एक्सिस पे जाना, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे किधर आना, -3 के पास, यहां पर इधर आता है पॉइंट, -3,0। चलो फटाफट और एक जने, अयान बोलो, 7, 0, -7, 0, -7 कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, कौन सा एक्सिस पे जाना, वाई एक्सिस पे किधर जाना, -7 है मेरी जान, 0, -7 समझ में आ गया, क्लियर है। अब क्या पॉइंट करना, प्लॉट करना, किधर प्लॉट करना, सब चीज रेडी है। नेक्स्ट चीज तुम लोगों को देखने का कुछ भी नहीं है, चलो ग्राफ बना देंगे। स्केल के बारे में बोलता हूँ, अभी तो छोटे नंबर्स है तो टेंशन नहीं है, जब बड़े नंबर्स आते हैं जब स्केल के बारे में बोलता हूँ। ग्राफ में प्लॉट करके वीडियो कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो वी हैव plotted the points on the graph. See on the while plotting the points you have to remember certain things. ये पूरे लेफ्ट साइड के वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज के हिसाब से x का x एक्सिस पे क्या नंबर लेना है देखना। Here everybody it is not same in the every sum, so have a little अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्केल हियर। एक ये पूरे फर्स्ट एक्स एक्सिस के वैल्यूज है, एक्स एक्सिस की सब में बड़ी वैल्यू माइनस में, सब में बड़ी वैल्यू प्लस में क्या है देखो, अपन निकले उसे -4 से +4 तक का, तो इसका मतलब 1-1 सेंटीमीटर ले रहे तो 1-1 यूनिट पे काम चल जाता अपना। तो एक्स एक्सिस तो टेंशन ही नहीं है, हर केस में सेम ही सेम पूरे 5 है, एक्स एक्सिस का 1-1 ले लेना है। वाई एक्सिस पे अपने को सोचना पड़ेगा, वाई एक्सिस में प्लस में सब में बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस में यारो प्लस में 8 है, माइनस में 12 है, माइनस में 12 है। तो अब तुम लोगों का ग्राफ इतना सफिशिएंट इनफ बड़ा है कि 1-1 ले लिए तो भी 8 और 12 पहुंच जा सकता। कभी कभी कैसा मतलब 26 ऐसा पहुंच गया तो उस टाइम पे वाई एक्सिस पे क्या लेते, 2-2, एक 1 बॉक्स 1 यूनिट को 2-2 से मतलब 1 सेंटीमीटर 2-2 यूनिट्स। अगर यहाँ पर वाई एक्सिस का सब में बड़ी वैल्यू प्लस की मान के चलो 26 आ रही, वाई एक्सिस की सब में बड़ी प्लस की वैल्यू 26 है, माइनस की वैल्यू फॉर एग्जांपल -14 है। तो अगर ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट ग्राफ है तो तुम 1, 2, 3 ले तो 26 तक पहुंच सकते, 26 नंबर मिलता तुम्हारे को, ग्राफ में नहीं रहते उतने नंबर।
हाँ ये दो मिला के 2 4 6 8 ले जाए, 2 4 6 8 10 ऐसा लेते हैं। इसको बोलते हैं स्केल डिसाइड करना। अपन स्केल अपने वैल्यूज को यहाँ पॉइंट्स लिख लिए, बाद में अपन खुद स्केल डिसाइड करना। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है पूरे। एक्स एक्सिस तो -4 से लेके +4 तक एक ले लिया तो भी एक्स एक्सिस में मिल जाते हैं अपने को। एक्स में मिनिमम 10 तो रहते ना, 8 तो रहते, कितने रहते कि मेरे को भी अंदाजा नहीं है, बट आ तो जाते हैं। 4 के अंदर, 4 के दरमियान में आ जाते हैं। वाई एक्सिस का मसला है। वाई एक्सिस पे अपने को क्या लेना है, सब में बड़ी वैल्यू प्लस की कितनी है देखना, सब में बड़ी वैल्यू माइनस की कितनी है देखना। 8 है -12 है, तो इसलिए 1 1 ले ले तो चल जाता। अब ग्राफ में आपके ये वाले क्वेश्चन में तो चल जाता, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मान के चलो अगर 26 है, प्लस की वैल्यू 26 है, 1 1 1 लेते तो 26 तक पहुंच सकते, तो नहीं पहुंच सकते। इसके लिए क्या करना, 2 2 लेना। मान के चलो वही अगर कुछ 50 आ गया, प्लस की सब में बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसमें सब्स्टिट्यूट करते 50 आया, जब क्या करते 5 5 ले सकते, 5 ले सकते, या फिर 10, मतलब 10 तो नहीं, 10 में बहुत छोटा हो जाता अपने हिसाब से। मतलब ये इसको स्केल डिसाइड करना बोलते, वैल्यूज पॉइंट्स मिल जाने के बाद में उसके हिसाब से अपन स्केल डिसाइड करके लिखना। समझ में आ गया? चलो अब देखो, x का -4 y का 8 है, x -4 y 8 -4, 8। तुम लोग ग्राफ में आराम से प्लॉट करो, क्योंकि ये पूरे मजाक मस्करा बना करना पड़ता। समझ करे फिर करो। फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट -3, 0। हाँ -3, 0 कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0। y कोऑर्डिनेट 0 तो कौन सा एक्सिस पे आता, x एक्सिस। x एक्सिस पे किधर, -3 के पास, यहां पर आ गया। नेक्स्ट -2, -6, x का -2, y का -6, यहां पर आता। नेक्स्ट -1, -10, x का -1, y का -10, इधर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं बोर्ड पे। 0, -12 कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 तो कौन से एक्सिस पे जाना, y एक्सिस। y एक्सिस पे किधर, नेगेटिव -12, यहां पर आना, 12 के पास एक्सिस पे चाहता पॉइंट। नेक्स्ट 1, 12, x का 1, y का -12, सेम यही लाइन में इधर, राइट। पॉइंट है सर्कल को, x का 2, y का -10, 3, -6। नेक्स्ट 4, 0 कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, y 4, 0 y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 बोलते कौन सा एक्सिस पे, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे 4 के पास, यहां पर आ गया पॉइंट। अब ये पूरा को स्केल से नहीं डालना है, स्केल से नहीं डालना, फ्री हैंड, हैंड फ्री नहीं, हैंड फ्री है। जरा तुम ना ग्राफ उसमें अच्छा डालो, ऐसा मेरे से नको डालो। राइट, ग्राफ बन गया, राइट। पानी गिर गया पूरा, ठीक है। चलो कंप्लीटेड है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। यहां पर स्केल लिखना, ग्राफ में कभी भी याद रख लो, ग्राफ आते ही स्केल, स्केल अगर नहीं लिखे तो मार्क्स जाते। स्केल एक्स एक्सिस का स्केल कितना है, एक्स एक्सिस विच इंप्लाइज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लिए ना। वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी सेम, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और ये पॉइंट्स का नाम लिख दे तो भी और बेहतर है, जैसे कि ये पॉइंट कौन सा है, -4, 8, ये कौन सा है, -3, 0, -2, -6, ऐसा पूरे पॉइंट्स लिख दो। पॉइंट्स पहले ना को लिखो, ग्राफ के बीच में आता, ग्राफ ड्रॉ करके फिर पॉइंट्स लिखो जगह बच्चे से। एरोस नहीं, जरूरत नहीं, ये ऐसा एरो बोल रहे हैं। हाँ नहीं, कुछ भी नहीं डाले तो भी, कुछ भी होता कुछ भी मैटर नहीं करता उससे, डाले तो भी ठीक है, नहीं भी डाले तो चलता। राइट, यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया। अब अपने को वेरीफाई करना है। अब ये इसके कितने जीरोस रहते बोले तो अपन 1 मार्क्स में वी डिस्कस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन 1 मार्क्स। ग्राफ एक आता बोल के बोला था मैं, एक्स एक्सिस को जितने जगह कट कर रहा उतने जीरोस रहता, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा, 2 जगह कट कर रहा, और कौन से जगह, -3 और 4 की जगह।
अब अपन ने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना, आंसर वही चाहना, अगर वो आ गया तो करेक्ट करे अपन लोग। समझ में आया? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन याद है, वेरीफाई बोल के फर्दर पार्ट ऑफ क्वेश्चन में पहले तो अपन -4 से +4 तक वैल्यूज ले लो, पॉइंट्स बना लो, प्लॉट कर लो, उसके बाद में एक्स एक्सिस को जहां भी कट कर रहा वो पोजीशंस पे क्या बोलते हैं, ये वैल्यूज आना अपने को, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व करे बंदे, वो वैल्यूज आ रहे तो वेरीफाई खत्म, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते तरीके से। चलो राइट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे यहाँ पर, हाँ, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद है ना, क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं, इसको किसे कंपेयर करें, फर्स्ट क्वेश्चन है बोल के जरा डिटेल में बताया तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन याद है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं रहता 1 रहता, कांस्टेंट टर्म क्या है 12, साइन नहीं लेना, खाली 12, 1 इंटू 12 के दो फैक्टर्स देखो, 12 किसमें आता, 2 6 are 12, हाँ 2 और 6 को ऐड करे तो 1 आना आता, 6 + 2 8, 6 - 2 4, 1 आ रहा नहीं, तो ये दो फैक्टर्स काम के नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर देखो, 3 4 are 12 या 4 3 are 12, अपने को -1 होना है तो बड़े नंबर को -4 + 3 -4 बोल तो -1 आ जाता, राइट। यहाँ पर इसको अपन कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, मिडिल टर्म को x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन आता, x कॉमन आया, x कॉमन निकाले तो क्या बचा, x प्लस 3, सेकेंड में क्या कॉमन आता, अगर सोच लिए, अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं क्या बोला, ट्रिक क्या करना, फर्स्ट ब्रैकेट जो है सेम टू सेम वो ब्रैकेट बना देना, x + 3। ऐसे वाले क्वेश्चन है सेम टू सेम में 2 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन कराया है, ऐसे वाले पॉलिनोमियल्स में, ये एक्सरसाइज में दूसरे में कराया है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, उसमें वहां पर चेक कर लोगे एक बार, राइट। चलो अब यहाँ पर दोनों में सेम ब्रैकेट बना दिया, जहां पर का ये x को मेरे को क्या बनाना है, -4x बनाना, x को -4x बना तो किससे मल्टीप्लाई करना, -4 से, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, -4 इंटू एक्स -4x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 3 are 12, ऊपर का टर्म बन रहा, तो यहां से यहां तक ये टीम है, यहां से यहां तक ये टीम है पूरी, दोनों टीम में से क्या कॉमन निकालना, x + 3 कॉमन है, तो यहां क्या बचा, x - 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को स्प्लिट कर दो, x + 3 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +4, -3 और +4 आए वैल्यूज, खत्म। करना पड़ता, एग्जाम में करना पड़ता, क्वेश्चन में दिया, समझ आ गया, करना पड़ता, हाँ वेरीफाई बोल के देता कैसे। और एक ट्रिक क्या है मालूम, अब अपने को कभी भी ये देखो, ये पूरे पॉइंट्स अपन जब प्लॉट कर रहे हैं ना, ये पूरे पॉइंट्स प्लॉट करना है, पूरे पॉइंट में अपने को मेन पॉइंट्स कौन से है बोलो, मेन पॉइंट्स कौन से है बोले तो ऐसा पॉइंट जहां पर y की वैल्यू 0 आ रही, ऐसा पॉइंट है जहां पर y की वैल्यू 0 आ रही, तो तुम लोग एक ट्रिक क्या कर सकते हैं, ये सम स्टार्ट करने से पहले पॉलिनोमियल को रफ में ले लेके जाओ, रफ में ले लेके जाके सॉल्व करने के टाइम पे देख लो x के कौन से दो वैल्यूज आ रहे, वो वाले पॉइंट पे अपने को y 0 मिलता, नहीं तो नॉर्मली कर दो, समझ में आया तो गुड, नहीं आया तो एक सजेशन को समझ में फेंक दो। एक मिनट रुक जाओ, इसको पॉज कर देना, राइट। हियर वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, p of x is equal to x square minus 6x plus 9, we have to substitute the values from -4 to +4, x is equal to first -4, x is equal to -4, which implies p of -4 is equal to -4 whole square minus 6 into -4 plus 9, in the place of x I am substituting -4, बराबर। चलो, -4 whole square is nothing but 16, minus into minus 6 4s are 24 प्लस 9, पूरे प्लस ही है, राइट, पूरा को ऐड कर दो, कितना हो रहा 49, हर सम में ले सकते। नेक्स्ट है वैल्यूज क्या है, -4, -49, -4, नेक्स्ट x इज इक्वल टू -3, p of -3 is equal to -3 whole square minus 6 into -3 plus 9, -3 whole square is nothing but 9, minus into minus 6 3s are 18 plus 9, 9 plus 9 18, 18 plus 18 36, so this is 36. What is the point, -3, -36, next p of -2, which implies -2 whole square minus 6 into -2
बराबर, हाँ, प्लस 9 माइनस 2 होल स्क्वायर 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 12 प्लस 9 हाउ मच 16 plus 9 25. So the point is minus 2 comma पीठ फुट जाती है अगर उधर आया तो मैं P of next minus 1 whole square minus 6 into minus 1 plus 9 minus 1 whole square is nothing but 1 minus into minus plus 6 plus 9 9 plus 1 10 10 plus 6 16 point is minus 1 comma 16. Next P of 0 0 square minus 6 into 0 plus 9 0 minus 0 plus 9 9 0 comma 9. Next P of 1 1 square minus 6 into 1 plus 9 1 square is nothing but 1 1 minus 6 plus 9. Now from here look for the plus values and minus values together. Plus 1 plus 9 2 plus values 1 plus 9 10 10 minus 6 4 who's that 16 P of 2 1 comma 4. Next so far we did not get 0 for y, we have to get 2 zeros, remember मतलब आगे आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से. P of 2 2 square minus 6 into 2 plus 9 2 square is nothing but 4 minus 6 2s are 12 plus 9 13 13 minus 12 13 minus 12 is nothing but 1. The point is 2 comma 1. यहाँ पर तक भी नहीं आया. Next P of 3 3 square minus 6 into 3 plus 9 आज नहीं आया तो कल तो आता, right. 3 square is nothing but 9 minus 18 plus 9 9 plus 9 18 minus 18 0. अरे answer is 0. What is it 3 comma 0. अब देखो यहाँ पर अब बता दो. नेक्स्ट 4 यहाँ पर भी आना चाहिए. P of 4 4 square minus 6 into 4 plus 9 4 square is 16 16 minus 24 plus 9 what is it 25 minus 24 1 माइनस 4 से लेके प्लस 4 तक अपन पूरे सॉल्व कर लिए. 2 जीरोज आए नहीं आए. अब क्या करना, ऐसे वाले केसेस में अपने को हर बार ये जो वैल्यू बोला मैं शुरू में तुम लोग को इससे आगे इससे सेम समझ के चलो बोला था हर क्वेश्चन में, मगर यहाँ पर सॉल्व करते करते बीच में चेक करना 2 जीरोज आना जरूरी है. आए अब तक जीरोज नहीं, इसका मतलब अपनी रेंज और थोड़ा इंक्रीज करना. नेक्स्ट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे. P ऑफ एक बार 5 लेंगे, एक बार -5 पे जाएंगे. 5 P ऑफ 5 square minus 6 into 5 plus 9 5 square is 25 minus 6 5s are 30 plus 9 30 34 34 minus 30 कितना हो रहा 4 राइट. क्या हुआ पॉइंट 5 comma 4. अच्छा इससे पहले मैं क्या बोला था, इससे पहले क्वेश्चन में क्या डिस्कस कर रहे थे पहले ये वाले क्वेश्चन को इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके जाके पहले जीरोस फाइंड कर लेना उसके रफ वर्क में. ये रीजन से बोला था रफ वर्क में जीरोस फाइंड कर लिया तो अपने को समझ में आ जाती है कहां से कहां पर जीरो मिलने वाला है. समझ में आया. ये पहले अपना जीरो इसको अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके अगर माइनस कर लिए तो अपने को मालूम चल जाता है कि कहां पर जीरो मिलने वाला है. चलो एक बार लास्ट -5 कर लेके चेक करेंगे ना, पहले वो कंफर्म कर लेंगे एक बार -1. ठीक है चलो कंफर्म कर लेंगे. रफ वर्क में कर रहा हूं उसका एक्स स्क्वायर, ये फाइनल नहीं है, लास्ट में फिर करना है. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. 1 9 इज 9 9 के दो फैक्टर 3 3 जार 9 3 3 जार 9 बोले तो -3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. दोनों में x कॉमन निकाले तो x -3. इसका मतलब कहीं गड़बड़ करे अपन लोग.
x माइनस 3, हाँ x माइनस 3 और यहाँ पर क्या आता कॉमन x माइनस 3, मतलब -3 से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 3 और x माइनस 3, मतलब x इज इक्वल टू +3 और x इज इक्वल टू +3, दो भी जगह -3 बना के दो भी प्लस वैल्यू है, तो एक ही पोजीशन पे दो बार कट हो रहा ग्राफ, समझ में आया? एक ही पोजीशन पे दो बार हो सकता ना, एक ही जगह पे दो वैल्यूज आ सकते, कैसा आता देखो, अब ऐसे टाइम पे ग्राफ कैसा आता मालूम, अब ये सपोज एक्स एक्सिस है ना, ऐसा आके टच कर जा इधर ही, उसी पोजीशन पे दो बार हुई, फर्स्ट ऐसा हो सकता, इधर 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 कैसा भी, ठीक है? चलो पॉइंट्स है अपने पास, प्लॉट करेंगे पूरे जमीन को, अच्छी किरबता कर रहे। Here we have the points, we have to plot these points on the graph. So like I already told, these are all the x values. X values अपन खुद select करें तो maximum -4 से +4 है. So the problem here is about the y axis. Y axis पे भी कई को बोलते हैं, इससे पहले अपने को 1 1 ले ले तो प्लस की वैल्यू सब में बढ़ के 8 थी, माइनस में 12 था, 8 से 12 1 1 ले ले तो काम चल गया। अब यहाँ पर प्लस से सब में बड़ा क्या है 49, माइनस सब में बड़ा माइनस सही नहीं, तो ज्यादातर पूरे वैल्यूज किसके हैं प्लस के हैं। तो इन जनरल तुम लोग क्या करते बोलते हो, ग्राफ कैसा बनाते, सपोज ये ग्राफ शीट है राइट, ऐसा शीट है, तो यहाँ पर तुम लोग मिड वैल्यूज लेते, ऐसा ग्राफ बनाते, यहाँ से स्टार्ट करते, थोड़े ऊपर पॉजिटिव थोड़े नेगेटिव, मगर अब यहाँ y का नेगेटिव है, y का नेगेटिव है इसने, तो क्या करना अपने हिसाब से ग्राफ को और थोड़ा चेंज करके y एक्सिस यहाँ बना देना, सॉरी x एक्सिस यहाँ बना देना, y के प्लस वैल्यू ज्यादा हो जाता है ऐसा करने से, समझ में आया? कांस्टेंट एक चीज नहीं रहती, वैल्यूज पे डिपेंड करते रहता हो, वैल्यूज के हिसाब से अपना स्केल जो भी है स्केल ले रहे, या फिर ग्राफ का x एक्सिस y एक्सिस का पोजीशन चेंज होते रहता। सपोज मान के चलो x के प्लस में ज्यादा है, x के प्लस में ज्यादा है, तो क्या x एक्सिस थोड़ा किधर हो जाती, ये y एक्सिस इधर शिफ्ट हो जाती, सो दैट x के प्लस ज्यादा आ सके, x के माइनस ज्यादा है तो इधर शिफ्ट हो जाती, माइनस ज्यादा आ सके, y के माइनस ज्यादा है तो ये एक्सिस ऊपर शिफ्ट आती, माइनस ज्यादा आ सके, ऐसा अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाना, ठीक है? समझ में आ गया? ऐसा एक्सिस डाल लो, मतलब डाल के रखा, मैं तुम लोगों से बड़ा आलसी हूँ, फिर से उसको चेंज करना नहीं होता, तो तुम लोग क्या करना उसको कंटिन्यू कर लो, मतलब मैं तो उसमें कंटिन्यू कर दूं, तुम लोग ड्रॉ करिए। अब रही बात स्केल की, अगर ठीक है मैं नीचे से नीचे कर भी लिया, सब में नीचे भी कर लिया, तो 49 तो ना रहते ग्राफ में, 510 भी बहुत ज्यादा हो जाता, 5 तुम लोग ग्राफ जितना बड़ा जाए, मतलब स्केल जितना बड़ा ले ग्राफ उतना छोटा हो जाता, स्केल जितना छोटा रहे ग्राफ उतना बड़ा होता। सोचो, अब सोचेंगे वैल्यूज किसके मल्टीपल्स है, देखो 49 किसमें भी नहीं आता, 7 7 5, ठीक है, 49 36 25 16 9 ऐसा दिख रहे, तो क्या क्या ले सकते हैं, कितने तुम लोग के ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक कितने लाइन्स आते हैं, एक 20 आते, 20 लाइन्स तो आ रहे आराम से, हाँ 20, एक में 2 2 लिए तो कितने होते हैं 40 तक पहुंच रहे, एक में 2 2 लिए तो 40 तक पहुंच रहे, 3 3 लिए तो 3 3 लिए तो कितने पहुंचते हैं 60 तक पहुंचते, मगर जरूरत नहीं, 4 4 ले लेंगे, 4 4 मतलब 1 सेंटीमीटर 4, फर्स्ट में यहाँ पर एक लाइन तक 4 8 12 16 20 24 वैसा 5 5 ले लेंगे, तुम लोग सही करते, चलो ले लो 5 5 ले लो, 5 5 लेने में भी कुछ भी गुना नहीं, 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसा करते करते 50 तक ले लो। अच्छा अब रही बात है 49 की, 49 को किधर 49 नहीं छोड़ो, 49 नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पर तक इधर 50 आ रहा, इधर 50 है, इधर 45 है, इधर 40 है, इधर 35 है, 49 किधर लेते 50 के जरा नीचे, 50 के जरा नीचे। अब ये दो लाइनों के बीच में भी ये 1 से लेके 5 के बीच में 10 लाइन आते, 1 से लेके 5 के बीच में 10 लाइन आते, तो वो दो लाइन मिला के एक पॉइंट बन रहा, दो लाइन एक पॉइंट, और दो लाइन 2 पॉइंट, और दो लाइन 3 पॉइंट, और दो लाइन 4 पॉइंट, और दो लाइन 5 पॉइंट, 5 तक पहुंच गया। समझ में आया? दो दो लाइना मिला के एक एक पॉइंट बन रहा, 2 लाइन्स 1 पॉइंट, तो मतलब 0 से 5 तक 10 लाइन आ रहे, दो लाइना मिला के एक पॉइंट है, 5 से लेके 10 तक 10 लाइन आ रहे, दो लाइना मिला के एक पॉइंट है। वैसा अब 49 पहुंचना है तो 50 से एक लाइन नीचे आना, दो लाइन नीचे आना, दो लाइन नीचे आना, दो लाइन नीचे आया तो 49 मिल जाता। 36 किधर मिलता, 35 से दो लाइन ऊपर, 25 तो डायरेक्टली मिल जाता, 16 15 से दो लाइन ऊपर, 9 10 से दो लाइन नीचे, 4 यहां समझ में आ गया। और एक चीज, और एक प्लस पॉइंट, और एक टिप यहाँ पर क्या याद रखना है, हाँ पेंसिल की निब जब मोटी है तो नहीं चलता, शार्प करके पहले से क्या करना, एकदम बारीक रहना निब। कहीं को बोले तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में mm का गैप रहता, अब तुम दो ऐसा पॉइंट बनाने चाहिए, 2 mm वहीं चल जाते सीधा सीधा, तो ऐसे शार्प निब रहना तुम लोग के दिमाग के जैसा, ठीक है? समझ में आ गया? अरे तुम लोग कॉन्फिडेंस नहीं है क्या यार? चलो चलो सही है, समझ में आ गया? प्लॉट करो, कितने ले रहे, 5 5 ले रहे ना, 5 10 15 20 25 30 35
40, 45, 50। चलो राइट, प्लॉट करते जाएंगे जल्दी जल्दी। x का -4, y का 49, -4, 49 समवेयर ओवर हियर। हाँ तुम लोग देख लो दादा, ग्राफ में कलेक्ट मिल जाए। -3, 36, -3 से 36 है, -3, 36। नेक्स्ट -2, 25, -2, 25, -1, 16, 0,9। कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है वो, कौन सा पॉइंट 0 है, x पॉइंट 0 है, तो कौन सा एक्सिस पे जाना, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे किधर, 9 के पास। अरे 10 से 2 नीचे है ना, 10 से 2 नीचे, 9 के पास। नेक्स्ट x का 1, y का 4, x1, y4, y4 बोल तो 5 से 2 नीचे। हाँ 2, 2,1, x का 2, y का 1, y का 1 बोल तो सिर्फ 2 लाइन ऊपर एकदम। हाँ उसके बाद में 3,0, x का 3, y का 0, y कोऑर्डिनेट 0 है x एक्सिस पे, एग्जैक्टली 3 के पास। नेक्स्ट 4,1, x का 4, y का 1, फिर यहां से 2 लाइन ऊपर, 5,4, 5 से जरा नीचे, 2 लाइन नीचे। राइट, इन पूरों को सुकून से ज्वाइन कर देते जाओ, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, हैंड फ्री। मार्कर भी भारी करना एकदम। चलो राइट, समझ में आ गया। अब इन एक्स एक्सिस को किधर कट कर रहा, 3 के पास कट कर रहा, तो वही 2 0 है। वेरीफाई कर दिए थे पहले, एक्चुअली वेरिफिकेशन करके यहाँ पर आए, फिर वेरीफाई कर लेंगे यहाँ पर। चलो हाँ, स्केल चेंज करना, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितने यूनिट लिए, 5 यूनिट। यहाँ पर 1 यूनिट की जगह 5 यूनिट लिख लो खाली, बाई का पूरा सेम टू सेम है। वेरिफिकेशन कर देंगे यहाँ पर। अरे इक्वेशन कहाँ गया, इक्वेशन क्या था बोलो, x² - 6x + 9 ना, वही था। x² - 6x + 9 = 0। x² कोएफिशिएंट 9, 1 × 9 इज 9, 9 के 2 फैक्टर 3, 3 + 3, सॉरी -3, -3। इससे पहले करे थे ना, अभी समझाया ना मैं। राइट, क्या है ये, x² - 3x + 9 = 0। इन दोनों में x कॉमन निकलता, x कॉमन निकाले तो x - 3। यहाँ पर क्या कॉमन निकलता नहीं मालूम है, अगर तो x - 3 लिख देना, = लिख देना, x की जगह 3x बनाना है, -3 से मल्टीप्लाई करना, -3 से। दोनों में क्या कॉमन आया अब, x - 3, यहाँ से x - 3, यहाँ से भी x - 3 = 0, x - 3 = 0, x - 3 = 0, -3 वहाँ चलेगा तो x = 3, यहाँ पर भी x = 3। तो ग्राफ x दो बार कट कर रहा, वो भी 3 के पास कट कर रहा। समझ में आ गया, कहाँ ढूंढूं, ग्राफ तो उधर है, मेरे को कहाँ ढूंढ रहे हो बोल के परेशान।